So, hi guys. So, CLAT is about to be underway. You're almost there to start preparing to take the exam actually, and I hope that your preparation has been going well. Now, I understand that given the time that you are in, given the time frame that you're in, you do not have the time to go over everything at this point, and it would be fruitless actually to do so. So what we at CLAT Prep have done today for you is, for your convenience, we've made a sort of cheat sheet for you to help optimize your preparation for the exam. Now, what do I mean by that? You have about a fortnight, that is about 15 days left till you actually take the exam. The point of this video series or this particular video is to help you best prepare for the exam given the limited amount of time that you have, and to make sure that every hour that you put into your preparation from this point forward, आप एक भी जो एक्स्ट्रा घंटा आप अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं, that gives you the best possible returns for the investment in terms of time that you're making. So that is the point of this video. Given that you're already running short of time, we're trying to keep it short, we're trying to keep it to the point, and we're trying to keep it incredibly accessible. तो आप कभी भी इस वीडियो को रिविजिट कर सकते हैं, आप इसके टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं और आप इसमें देख सकते हैं कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है. The simple rule that you need to understand from this is this, that you can always come back to this video to fine tune your preparation, and that given the amount of time that you have, you can still make a dent in your preparation. You can still give yourself that extra boost if you prepare smartly. Now, how to prepare smartly? That is the point of this presentation. With that, we'll get started. So this is your CLAT cheat sheet for this fortnight. I hope you draw something from this. So again, as I've said, I hope your preparation is going well, that it is at its full speed, that there's no stone that you're leaving unturned in your preparation. But I understand that a lot of effort here and there may not make a huge dent in the performance that you actually deliver. So आपके efforts को fine tune करने के लिए, आपके efforts को laser focus करके अपना best possible result deliver करने के लिए ये presentation तैयार किया गया है, ये video तैयार किया गया है, ताकि आप खुद के efforts और अपनी मेहनत को और अच्छे से optimize कर पाएं. Now this is, please understand दैट ये प्रेपरेशन प्लान है, इसमें मैंने आपको कुछ जनरल रूल्स बताए हैं, मैं आपको कुछ जनरल रूल्स बताऊंगा. अब इसमें से आपको क्या ड्रॉ करना है, और द प्लान हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड टू योर नीड्स, टू योर वीकनेस एरियाज एंड टू व्हाट यू नीड टू डू. सो टेक दीज रूल्स, think about them and apply them to your preparation. यहां पे जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो में आप जो भी सुनेंगे वो पत्थर की लकीर नहीं है. आपको जो भी करना है वो आपको खुद अपने, ये रूल्स आपको खुद की प्रेपरेशन पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट खुद के लिए ला पाए. विद दैट नोट इन माइंड, वील गेट स्टार्टेड. So first things first, prepare for your worst nightmare. Now, what do I mean by that? What I mean by this simply is this. हम कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारी करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या होता है? आप उस एग्जाम की तैयारी करें जिसमें जो सेक्शंस आपके सबसे कमजोर हैं वो सबसे हार्ड आए, और जो सेक्शंस स्ट्रॉन्ग है, लेट्स से आपकी जीके अच्छी है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है, या फिर आपका लीगल अच्छा है, तो वो आप समझिए सबसे इजी आएगा ताकि आपका एडवांटेज न्यूट्रलाइज हो जाए. और जो चीज आपको नहीं आती है, या आप उसमें थोड़े कमजोर हैं, या आप थोड़े लैकिंग हैं, आप समझिए वो सबसे हार्ड आएगा. उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए, इसका लॉजिक क्या है? नाउ बॉस, इसका लॉजिक सिंपल है. यदि आप अपने सबसे टफ एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप ऑलरेडी अपने डर को जीत चुके हैं. अब इसके कोई भी एग्जाम आएगा, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज, इट वोंट बॉदर यू एज मच. एंड व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज you've already prepared for this, you've prepared for that eventuality. अगर आपने अपने सबसे बड़े डर के लिए तैयारी कर रखी है तो फिर आपको एग्जाम में कोई चीज ऑफ गार्ड नहीं ले सकती, आपको एग्जाम में कोई चीज नहीं डरा सकती. इस नोट को ध्यान में रखते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now, what does it mean to prepare for your worst nightmare? हम में से कोई भी अपनी weaknesses acknowledge नहीं करना चाहता. हो सकता है आप किसी एक particular area में lacking हो सकता है आपकी vocabulary थोड़ी कमजोर हो सकता है आपको passage पढ़ने में time लग रहा हो, but आप ये चीज खुद को मानना नहीं चाहेंगे कई बार कि नहीं ठीक है, average time लगता है, सबको ही इतना लगता है. बहाने देना खुद को काफी आसान होता है.
पर हम अपनी वीकनेस एक्नॉलेज करेंगे, जब हम मानेंगे कि हाँ ये मेरा एरिया लैकिंग है, मुझे इसमें और एफर्ट डालने की जरूरत है, आपकी परफॉर्मेंस बस इस एक्नॉलेजमेंट से, बस ये मानने से कि आपकी परफॉर्मेंस कहीं पे लैकिंग है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने अपने डर को जीतने के प्रति आपका पहला कदम बढ़ा लिया है। you're already on your way to get better. Now first thing that I want you to do this is this. If needed, please pause this video at this moment. Okay, pause this video at this moment and think to yourself, be honest to yourself, write it down if you have to. What are your weaknesses? What areas are you lacking in? Okay, आप एक लिस्ट बनाइए कि ये पर्टिकुलर एरियाज मेरे लैकिंग है। आप आपके जितने भी 4-5 सेक्शंस हैं इनको लिस्ट कीजिए और उनमें सब टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे कि ये मेरा कमजोर है, ये मेरा स्ट्रांग है। एक बार वो लिस्ट बन जाए, फिर आप वो लिस्ट आपका मास्टर प्लान होगा। आप उस मास्टर प्लान के हिसाब से अपने आगे की तैयारी करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? नाउ when you prepare for this version of the exam that is already going to be your worst nightmare, let's say you are very bad, very terrible at quantitative aptitude, अगर आप बहुत hard quantitative aptitude आएगा ये मान के आप तैयारी करते हैं, तो फिर चाहे कितना ही hard quantitative aptitude आ जाए, that cannot catch you off guard. Why? Because you've prepared for it. और हमें कोई भी चीज एग्जाम में डराती क्यों है? क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर हम किसी चीज के लिए पहले से मेंटली भी तैयार होके आते हैं, भले हमने उसकी एक्चुअल में एग्जाम के लिए तैयारी इतनी नहीं की हो, बट अगर हम मेंटली भी तैयार हैं तो उससे हमारी परफॉर्मेंस में बूस्ट आ जाता है। वो परफॉर्मेंस में बूस्ट 15 दिन में आप कोई इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक एफर्ट आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल सकते। दिस इज राइट नाउ अ गेम ऑफ योर स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, दिस इज अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज दैट स्ट्रैटेजी, दैट इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। सो आप ये मान के चलिए कि आपका जो वीकेस्ट सेक्शन है, सपोज जीके आपने पूरे साल तैयार नहीं करी है, जीके आपका वीकेस्ट सेक्शन है, आप ये मान के चलिए वो सबसे हार्ड आएगा और वो सबसे टाइम कंज्यूमिंग आएगा। यदि ऐसा है, if that is going to be the hardest section on the exam, how should you prepare for it? That make a list of the topics that you haven't covered and then approach them, and the effort that you'll see that you've put in at that point of time and the amount of results that you will draw from it will be something stupendous. I can guarantee you that. Now when I say that make a list, follow that as a master plan, I also need you to understand one thing. आपके पास अब बस 15 दिन बचे हैं, एक पखवाड़े में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। So your preparation has to be timed. Every exam that you take from this point forward, भले ही वो मॉक हो, सेक्शनल टेस्ट हो, सिर्फ एक 5 क्वेश्चन का हैंड आउट हो, आप कुछ भी अगर इस पॉइंट पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप उसको टाइम करके अटेम्प्ट करेंगे। यू विल कीप अ स्टॉप वॉच, यू विल कीप अ टाइमर इफ यू हैव टू, एंड यू विल ट्राई टू सिम्युलेट द एग्जाम सेटिंग्स एज क्लोज एज पॉसिबल। तो एग्जाम टाइम में जितनी भी आप एग्जाम टाइम का आप जितना भी अपने घर में रिक्रिएट कर सकते हैं या अपने कोचिंग सेंटर में रिक्रिएट कर सकते हैं, अपने स्टडी रूम में रिक्रिएट कर सकते हैं, कीजिए। अपने दिमाग में रिहर्स कीजिए कि आप एग्जाम कैसे देंगे। द आइडिया इज टू गेट द अनफेमिलियरिटी आउट ऑफ द वे। रिमेंबर, फियर इज व्हाट गेट्स टू यू first and foremost. The lack of preparation, if that is there, will get to you later. पहले अगर आपको डर लग गया, यदि आप थोड़े चौंक गए, यदि एग्जाम ने आपको थोड़ा सरप्राइज कर दिया, तो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके पूरे एग्जाम में वो रिफ्लेक्ट करेगा, और मैं वो नहीं चाहता हूं। हम यहां पे चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट करें, और वो करने के लिए हमें फियर हटाना सबसे पहले जरूरी है। वो हम कैसे करेंगे? आप अपने घर में एग्जाम सेटिंग्स को जितना क्लोजली रेप्लिकेट कर सकते हैं आप वो कीजिए, एंड सी द results that you get in those settings and try to improve on them. Do not do non-time test. हर टेस्ट को टाइम कीजिए, हर टेस्ट को इवेल्युएट कीजिए, भले ही वो 2 क्वेश्चन का हैंड आउट हो। That is crucial to your performance at this point of time. Now once you master it like this, मुझे पता है थोड़ा डरावना है, मुझे पता है थोड़ा स्कैरी है, आप लोगों ने इसकी अगर तैयारी नहीं करी है, टू इमेजिन कि 1 साल बाद इतनी तैयारी करने के बाद आपका वर्स्ट पॉसिबल एग्जाम आपके सामने आ सकता है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी हार्ड कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प, बट वंस यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, that cannot get to you. Remember, fear is the mind killer. Do not let fear get to you. Okay? With this, we'll move on. The second golden rule, revise, revise, revise. You cannot revise enough. There is no such thing as enough revision.
ब्रूस ली, आई एम श्योर आप सबने ब्रूस ली के बारे में सुना था। ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उन 10,000 किक्स के डर नहीं लगता जो आपने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे उस एक किक से डर लगता है जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। ये प्रिंसिपल मार्शल आर्ट्स में जितना एप्लीकेबल है, ये लाइफ में भी उतना एप्लीकेबल है, और ये आप कोई भी एग्जाम देंगे ये उसमें भी उतना एप्लीकेबल है। अब रिवीजन कैसे करें, ये तो आप बोलेंगे सर आपने तो बहुत जनरल बात बोल दी, रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करेंगे, स्पेशली सिर्फ 15 दिन के दरमियान? There is first thing that we will acknowledge and we will affirm to ourselves every day is there is no such thing as too much revision. अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत रिवाइज कर चुका हूं और रिवीजन की पॉसिबिलिटी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। आपको और रिवाइज करना है। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि मैंने बहुत रिवाइज करना है और 2 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज टू मच रिविजन, यू मस्ट रिवाइज। नाउ रिमेंबर, एक बार पढ़ के आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। अगर आपने कोई चीज आज पढ़ी है तो आपको आज से 10 दिन बाद याद नहीं रहेगी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जीके के नोट्स आपने 6 महीने पहले बनाए थे वो आपको एग्जाम में याद आएंगे? नहीं हो सकता ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज व्हाट यू ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, रिविजिट, मेक टाइम फॉर रिविजन इन योर शेड्यूल। नाउ इस पॉइंट पे मेरी आपको सलाह यही है, क्लैट प्रेप की आपको सलाह यही है, डू नॉट पिक अप एनी न्यू मटेरियल। अगर आप इस पॉइंट पे नया मटेरियल उठाएंगे जिसको आपने पहले कभी टच नहीं किया है, आप और कंफ्यूज होंगे, आप डरेंगे, आपका माइंडसेट अफेक्ट होगा। तो जो चीज आप कर चुके हैं आप उसको मास्टर करने पे फोकस करें, ना कि नई नई चीजों को छूने की कोशिश करें। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यदि आप कोई चीज पहले पढ़ चुके हैं, लेट्स से परसेंटेजेस या प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा क्वांट का पार्ट आपने पहले से पढ़ा हुआ है, what would that do is, यदि आपने पहला पढ़ा हुआ है, you have a basic structure in your head about how that area would operate, so go revise that and master that. अगर आपने जैसे for instance compound interest problems नहीं किए हैं, do not touch them now because you will spend a lot of time trying to grasp a new topic. That time is better spent revising what you've already somewhat understood and then maximizing your results. इस टाइम पे हमारा फोकस नया मटेरियल सीखने का नहीं है, इस टाइम पे हमारा फोकस जो मटेरियल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना उसको मास्टर करने का है। इस माइंडसेट से हर क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए। ऑलराइट, सो क्लैट आप किस चीज का टेस्ट है? क्लैट आपकी एक्यूरेसी, रीडिंग स्पीड और टाइम मैनेजमेंट टेस्ट कर रहा है। तो आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी और आपका टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगा जब आप रिवाइज करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेट्स से आपने जीके के अपने नोट्स रिवाइज किए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको हर डिटेल पहली बार ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको क्रूशियल डिटेल्स मालूम है क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हैं। तो टाइम आपका रीडिंग में से बचेगा, वो टाइम आपकी एक्यूरेसी को ऐड करेगा, वो टाइम आपको दूसरे सेक्शंस में आप डिवोट कर पाएंगे, जिससे आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव होगा। द गेम एट दिस पॉइंट इज टू इंप्रूव ओवरऑल स्कोर एंड नथिंग एल्स। You understand that? Good. Now, CLAT आप किस पॉइंट तक रिवाइज करें? जैसा मैं आपको बता चुका हूं, there is no such thing as too much revision. आपको जब भी लगे कि मैं बहुत रिवाइज कर चुका हूं, आप 2 बार और रिवाइज करें। इतना रिवाइज करें कि जब आप वो चीज वापस टच करें, जब आप वो नोट्स सपोज आपके जीके के नोट्स को आप 15th टाइम टच करें, तो वो आपको सेकंड नेचर आ जाने चाहिए। मतलब आप वो सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करें अपने नोट्स का और आपको पूरा रिकॉल हो जाना चाहिए। उस लेवल की मास्टरी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन अभी करने में सक्षम नहीं है, इफ यू कैन नॉट प्रिपेयर दैट वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर वट एवर रीजन, ट्राई टू गेट एज क्लोज टू इट एज पॉसिबल। इट इज रियली 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 क्रूशियल। All right, now ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि you have to revise. I have also told you कि you have to prepare for your worst nightmare. Now, what does that lead you to? If you have to prepare for your worst nightmare and the antidote to preparing for your worst nightmare is enough revision, how do you revise? How do you fit it in a schedule, given that you only have 15 days? Drum roll sounds. Now have a plan and stick to it come what may. आप आज अगेन मैं आपको वापस कहूंगा, अगर आपने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया है, शेड्यूल नहीं बनाया है, आपका प्रेपरेशन चार्ट रेडी नहीं है, इस वीडियो को इसी समय पॉज करें, मेक अ थरो टाइम टेबल। ओके, मेक अ थरो टाइम टेबल आज की तारीख से आपके एग्जाम की तारीख के 1 दिन पहले तक, एंड देन स्टिक टू इट। एक बार आप उसको वर्ड्स में लिख चुके हैं, देन कमिट टू इट। यू हैव टू डू इट कम व्हाट वे। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू स्टिक टू दिस टाइम टेबल। ओके,
हर की, एंड आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इवन व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट डेज, इट इज वी ऑल लाइक मेकिंग प्लान्स. हम सबको अच्छे लंबे लंबे सुंदर हैंड राइटिंग में टाइम टेबल लिखना बहुत पसंद है, राइट? हमें अच्छे सुंदर टाइम टेबल बनाना बहुत पसंद है. हम सोचते बहुत हैं कि हम इतनी देर ये पढ़ेंगे, उतनी देर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर मैथ पढ़ लेंगे, फिर जीके भी रिवाइज कर लेंगे. बट हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली स्टिक टू टाइम टेबल्स? Very few. And sticking to the timetable is what makes a difference in your actual examination performance. Okay? टाइम टेबल को स्टिक करना, लेट से आपने हर हफ्ते की 7 घंटे की या हर दिन की आपने 7 घंटे की 8 घंटे की प्रेपरेशन शेड्यूल करी हुई है, मैं रोज 8 घंटे पढ़ाई करूंगा. किसी को भी वो टाइम टेबल को स्टिक करना अच्छा नहीं लगता. नोबडी वांट्स टू सिट एंड स्टडी फॉर 8 आवर्स, बट अंडरस्टैंड दैट इट्स फॉर अ शॉर्ट टर्म, बस 15 दिन की बात है. एंड अंडरस्टैंड दैट अगर आपने ये 15 दिन ये टाइम टेबल को स्टिक कर लिया, आपने टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी कर ली, आपकी रैंक में 50-100 रैंक्स का अंतर सिर्फ टाइम टेबल स्टिक करने से आ जाएगा. स्टिक टू द टाइम टेबल, दैट विल बूस्ट योर रैंक बाय एटलीस्ट 50 to 100 रैंक्स. दैट इज नॉट अ स्मॉल नंबर. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. नाउ every single day of your preparation, in fact I would recommend every single hour has to be chalked out. If you haven't done that, then please pause this video and make a timetable right now. How would you make that timetable? I will give you a general rule, but please know that do not, and I cannot stress the importance of this enough. दूसरे बच्चों का टाइम टेबल मत कॉपी कीजिए, आपके सीनियर्स का टाइम टेबल मत कॉपी कीजिए, पुराने रैंक होल्डर्स का टाइम टेबल मत कॉपी कीजिए. Your timetable has to reflect your values and your weaknesses. आप कहां पे कमजोर हैं, आप कहां पे स्ट्रांग हैं, आपने अभी और कहां पे मेहनत करनी है. आपके टाइम टेबल में ये चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी. दूसरे लोगों के टाइम टेबल में उनकी वैल्यूज और उनकी प्रेफरेंसेस रिफ्लेक्ट कर रही थी. तो जस्ट बिकॉज किसी और ने वो टाइम टेबल फॉलो किया और उसके लिए वो काम कर गया, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो टाइम टेबल आपके लिए भी काम करे. आपका टाइम टेबल आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसे अपने अनुरूप बनाएंगे. मेक इट सो that it reflects your weakness areas, the areas that you as a student need to work towards. That I cannot stress enough is the most important thing to do. Okay, so how do you do that? Try to make, you have 15 days, about 15 days left. My advice would be to spend 3 days per subject, give or take. And let's say if you're weaker in an area, give it 4 days, take 1 day off from an area and you're strong in, and try to revise GK every day irrespective of whether it's a GK day or non GK day. Okay, रोज का टाइम टेबल सेट कीजिए, अपने 8 घंटे शेड्यूल कीजिए कि अगर मैंने आज 8 घंटे का ही किया तो आज मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा या करूंगी, और उससे स्टिक कीजिए. जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूं. This is a general rule. This is an illustrative rule. You have to adapt it to your circumstance, which is what? Try to do 3 days for each subject. You can do it in continuity or you can break it to break the monotony. It is entirely up to you. But you have to set it according to your circumstance and revise GK every day. Revise GK every day. Cannot stress this enough. Read every day. Cannot stress this enough. Now, मैंने आपको बता दिया कि आपको आपके बेस्ट वर्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है. वो कैसे करनी है? बार बार रिवीजन करना है. रिवीजन का बेस्ट शेड्यूल क्या है? ये तरीका है, बट आपको अपनी वैल्यूज रिफ्लेक्ट करनी है उसमें. अब आप बोलेंगे ठीक है, बट वोंट दिस बर्न मी आउट, वोंट दिस टायर मी आउट? एंड यू आर एंटायरली राइट, विच इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड मोस्ट क्रूशियल थिंग अबाउट दिस preparation time that you have left. All of you need some rest. Do not underemphasize, do not underplay the importance of rest. Remember, all work and no play makes Jack an incredibly dull boy. Okay? It is very important that when you make time for work, you also make time for rest. अगर आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी करी है, ये अगर आपने रिवीजन टाइम से किया है, अगर आप अभी तक अच्छे से तैयार होकर आ रहे हैं, तो आपको अब बहुत बेतरतीबी से तैयारी करने की जरूरत है भी नहीं. यू डोंट हैव टू गेट वरीड अबाउट योर प्रेपरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आपने फॉर इंस्टेंस फॉर वट एवर रीजन अच्छे से तैयारी नहीं करी है, तो भी आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परेशान होकर अपना रिजल्ट और खराब करेंगे. तो दोनों ही सूरतों में यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रिजल्ट्स, यू हैव टू वरी अबाउट द माइंडसेट दैट यू टेक द एग्जाम इन.
राइट? सो अगर आप पूरी रात की पढ़ाई करेंगे, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, उससे अब इतना फायदा नहीं होगा। फायदा होगा अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखने से और अपनी प्रेपरेशन लेजर फोकस्ड रखने से। आपको अपने शेड्यूल में रेस्ट आवर्स लगाना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव रेस्ट आवर्स इन योर शेड्यूल। ओवर एंड अबव 8 hours of sleep, give or take, you have to have active rest hours in the day in which you do nothing. You go for a walk, you take time off. At this point of time, don't use your rest hours to watch TV, because that also engages the brain. We want to turn the brain off. Do not scroll through Instagram. Do not do anything else which engages the brain. Just rest. Relax, go for a walk, watch nature, just sit, get bored. There is value in boredom. It is okay to get bored. Just let your brain rest. Okay? On the day of your exam, you want to be sharp as a tack. You want to be able to attack problems from different angles, and you want to do it as quickly as possible. You do not want to be burnt out on the day of your exam. So my advice to you would be, when you make your timetable, try to work really hard till 2 days before the exam. Just the day before the exam and on the eve of the exam, try to not study more than 2 hours. Again, if that induces anxiety, अगर आपको लगता है मैं उस दिन पढ़ाई नहीं करूंगा तो मुझे ज्यादा एंजाइटी होगी, तो आप पढ़ाई कीजिए obviously. But if you can, if it won't induce anxiety for you, then please don't study more than 2 hours on that day. And on the morning of the exam, do not study at all. Again, it depends on you. If you think not preparing will make you anxious on those days, then please prepare. It is entirely up to you. But this would be my general advice to you. Exceptions obviously may apply. Now, do not also, because this is right now a battle of mindset, do not think of the exam as a waste of your time. Do not think of the rest that you take for the exam as a waste of your time. It is not. It is actually, rest is crucial to add to your work. अगर आप rest नहीं करेंगे तो आप अपने work में add कर पाएंगे. We are resting so that we can make ourselves sharper, so that we can get better at taking the exam. So rest has value. Do not think of it as waste of time. Think of it as value added to your brain. Okay? So those are my 4 crucial tips to you for the exam. Again, I will reiterate those for you. 1, be prepared for your worst nightmare. How do you prepare for your worst nightmare? You revise, you focus on your weakness areas and you revise again and again and again. Now, how do you revise efficiently? You make a timetable. Rule 3. You make a timetable and you stick to it come what may. And is a timetable only comprised of work? No, definitely not. So when you make a timetable, make sure that you have active rest hours. You have rest hours scheduled in your timetable. That is of crucial, paramount importance. Okay? Great. Now, I've given you broad principles. These are obviously, you have to adapt these principles to your circumstance. ये general principles हैं, हो सकता है आपके लिए true हो, आपके लिए apply हो सकता है आपके लिए apply ना हो. But किसी भी सूरत में आपको इनको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी सर्कमस्टांस में. यदि आपकी कोई पर्सनल सर्कमस्टांस डिफरेंट है तो आप उसको थोड़ा डिफरेंटली अप्लाई करेंगे. दीज आर ओनली इंटेंडेड टू बी ब्रॉड जनरल रूल्स टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर. सो व्हाटएवर योर सर्कमस्टांसेस, अडैप्ट दीज टू योर रूल्स एंड मेक श्योर दैट यू स्टिक टू इट. ओके, नाउ विद दैट नोट इन माइंड, all the best to all of you. I know the exam is about to take place and I know all of you have prepared incredibly hard for this. So you've got this. Do not worry too much. Remember this, at this point of time, your preparation becomes secondary. Your mindset becomes first. Okay. So make sure that you approach problems, approach your weakness areas and approach everything else in your life right now with the right mindset, with a warrior's mindset. Also, show kindness to yourself, show compassion to yourself. Do not engage in negative self-talk. That won't help you add to your performance or to your marks. Be kind to yourself, be brave in your circumstance, and march forward. I wish you all the best.